So good morning, friends. As you know, today is Sunday in Wealth Mastery Club, we we conduct a special session on wealth, and our today's session is power of equity, right? So before I begin, I would like to ask all of you, how many of you are investors or trader in a stock market? No. So No, sir. it's a new subject for everybody. Okay, Prasanna ji is raising his hand, so he is expert. Okay, great. Fine. So we'll keeping everybody in mind uh, before I come to the topic, a small introduction and a brief about the stock market in layman terms, so that everybody get connected with the topic, right? So friends, first of all, my name is Dr. Amit Mato. I'm author of two books, blogger and chartered wealth manager. I'm also known as a financial transformational coach. For the last 20 years, I'm into financial industry, and I'm on mission of empowering 10 million people through financial literacy by 15th August 2040. Successfully conducted 300 plus sessions and empowered over 10,000 plus people. These are few glimpses. Before Corona, everything was offline, and after Corona, everything is online. Online became a blessing, I must say, because of this, being here in Mumbai, I get connected with people across India and abroad also. Through Rotary, BNI, and other platforms, I got this opportunity. I conducted programs for companies like Vail and ONGCs. This is the book I authored, and it's now Amazon bestseller. In last couple of months, a few of my achievements are: I completed my honorary doctorate from in financial planning from University of Tonga, best financial transformational coach from New Delhi Forum of India, Entrepreneur Forum of India. Then also I got awarded from as emerging star wealth manager from Quantic. So friends, let's start the topic. And before that, a few basics about the stock market. It's very simple. First of all, we need to understand. We all do some kind of shopping, correct? Some kind of shopping, you can say. Either it's vegetable market, it's a retail market, anything. We go to the market, we pay, and in return, we get the things whatever we want. एक हाथ से पैसे देते हैं, दूसरे हाथ से हमें हमारा सामान मिल जाता है, करेक्ट? दिस इज हाउ. बट यहाँ पे क्या होता है, यू नो द पर्सन जिससे आप खरीद रहे हैं, चाहे वो कपड़े हो, किसी भी राशन पानी हो, या फिर सब्जी हो, वट एवर इट इज, राइट? बट इन स्टॉक मार्केट इट्स अ बिट डिफरेंट. आप शेयर की ही खरीद बिक्री करते हैं, लेकिन किससे खरीद रहे हैं आपको पता नहीं है, या फिर आप किसको बेच रहे हैं आपको पता नहीं है, बट ट्रांजैक्शन हो जाता है. एंड ऐसा क्यों होता है? बिकॉज इट्स राउट थ्रू एक्सचेंज. एंड जब एक्सचेंज की बात आती है, एवरीथिंग इज ऑनलाइन एंड पीपल कनेक्टेड. ओके, पीपल कनेक्टेड, एंड उसका एक प्रोसेस होता है. आप बॉम्बे में बैठे हो, आप चेन्नई में हो, कोई कोलकाता में है, कोई दिल्ली में है, इट हार्डली मैटर, या फिर कोई स्मॉल सिटी में है, भुवनेश्वर में है, जमशेदपुर में है, कहीं से भी, यू प्लेस द ऑर्डर फॉर बाइंग और सेलिंग. एंड कोई और भी जो है, आप बाइंग के लिए ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं, कोई सेल के लिए ऑर्डर प्लेस कर रहा है. द ऑर्डर मैच होता है, प्राइस मैच होता है, ऑर्डर गेट एग्जीक्यूटेड, एंड दैट इज कॉल्ड ट्रेडिंग. ओके, सो दिस इज सो सिंपल. बट आज हर एक ऑर्गेनाइजेशन में देयर इज अ सिस्टम, हायरार्की. स्टॉक मार्केट का भी एक हायरार्की होता है. हायरार्की में सबसे टॉप में है सेबी, जो रूल्स एंड रेगुलेशन बनाते हैं. उसके अंडर में द एक्सचेंजेस लाइक एनएससी एंड बीएससी. उसके अंडर में ब्रोकर्स आते हैं लाइक कोटक सिक्योरिटीज, शेर खान, राइट, इंडिया इन्फोलाइन, अरिहंत कैपिटल, एंड सो ऑन. एंड उसके बाद आते हैं क्लाइंट, इन्वेस्टर, हम आप. सो
आपको ट्रेडिंग करना है, यू वांट टू इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट, फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड हैव ए ट्रेडिंग अकाउंट, एंड ट्रेडिंग अकाउंट के साथ आपका डिमेट अकाउंट होना चाहिए, और आपके ट्रेडिंग अकाउंट के साथ आपका बैंक अकाउंट लिंक होना चाहिए। तो जिस तरीके से बैंक में आप अकाउंट ओपन करते हो तो सर्टेन फॉर्मेलिटीज पूरा करना पड़ता है, डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ता है, जस्ट लाइक दैट आपको ट्रेडिंग करना है, इन्वेस्टिंग करना है स्टॉक मार्केट में, तो आपका एक अकाउंट ओपन करना पड़ता है। इसके लिए कुछ बेसिक फॉर्मेलिटीज होते हैं, लाइक फोटो चाहिए, पैन कार्ड चाहिए, आधार कार्ड चाहिए, बैंक प्रूफ चाहिए, एंड ये सारा करने के बाद आपका ब्रोकर आपका ट्रेडिंग अकाउंट एंड डीमैट अकाउंट ओपन करता है। नाउ व्हाट इज ट्रेडिंग अकाउंट, व्हाट इज डीमैट अकाउंट? ट्रेडिंग अकाउंट, द अकाउंट through which you buy and sell the stocks, is called trading account, and the demat account is connected with your trading account. So whatever shares you buy, those shares got parked in demat account. Friends, everybody are video off, so it's like I'm talking to my laptop. Okay, it would be great if you people can switch on your video, right? This is better. Okay, so दिस इज सो सिंपल। बैंक अकाउंट में आप क्या करते हो, ओपन करते हो। बैंक अकाउंट का पर्पस क्या है? पैसा पार्क करने के लिए बैंक अकाउंट होता है। डीमैट अकाउंट का पर्पस है शेयर्स को पार्क करना, राइट। नाउ आते हैं थोड़ा हायरार्की पे और सिस्टम को समझ लेते हैं, उसके बाद टॉपिक पे आ जाते हैं सीधा से। सो जैसा कि मैंने बताया, टॉप मोस्ट हायरार्की में है सेबी, उसके सारे रूल्स रेगुलेशन को सभी फॉलो करते हैं, बी इट एक्सचेंज, बी इट ब्रोकर और क्लाइंट्स। SEBI is the regulator. Okay. Now, you have your trading account which is linked with your bank account and trading account, demat account. And आपके ऊपर आपका ब्रोकर है, उसका भी ट्रेडिंग अकाउंट, उसका भी डीमैट अकाउंट होता है, बैंक अकाउंट होता है। आपके बैंक अकाउंट से आपका ब्रोकर का बैंक अकाउंट लिंक रहता है, और आपके डीमैट अकाउंट से आपका ब्रोकर का डीमैट अकाउंट लिंक रहता है। सेम वे एक्सचेंज का डीमैट अकाउंट होता है, बैंक अकाउंट होता है, राइट। नाउ हाउ डज इट टेक प्लेस? कैसा पूरा साइकिल कंप्लीट होता है, ध्यान से सुनिएगा। आप शेयर्स बाई करते हैं, शेयर बाई हो गया तो डेफिनेटली आपको पेमेंट करना होगा, तो आप अपने बैंक अकाउंट से ब्रोकर को पेमेंट करते हैं, एंड ब्रोकर एक्सचेंज को पेमेंट करता है। इन रिटर्न एक्सचेंज से शेयर्स ब्रोकर को मिलता है, और ब्रोकर फिर आपको पेमेंट करता है। दिस इज called a entire cycle, and this is called settlement, and this entire settlement take place 2 days of time. This is basics, okay? And in a same way, जब आप सेल करते हैं स्टॉक को, तो आपके डीमैट अकाउंट से शेयर निकल के जाते हैं ब्रोकर को, ब्रोकर एक्सचेंज को देता है, एंड बदले में एक्सचेंज से पैसा ब्रोकर को मिलता है, और एक्सचेंज आपको पेमेंट करता है। तो दो चीजें होती है, या तो आप शेयर बाई करते हो या फिर शेयर सेल करते हो। बाई करते हैं तो आप पेमेंट करते हैं, बदले में शेयर्स मिलता है, दैट इज कॉल्ड पे इन ऑफ फंड्स, पे आउट ऑफ शेयर्स। एंड जब आप सेल करते हैं तो आप शेयर्स देते हो, बदले में आपको पैसा मिलता है, दैट इज कॉल्ड पे इन ऑफ शेयर, पे आउट ऑफ फंड। सो दिस इज सो सिंपल। नाउ लेट्स कम टू द टॉपिक। सो हाउ डज इट वर्क एंड व्हाई one should invest in equity? What is the power of equity? Equity means shares, okay? So don't get confused with the words, terminology, okay? So let's understand. There were two brothers, दो भाई थे, आज से 20 साल पहले की बात है। रॉयल एनफील्ड बाइक शायद आप में से कुछ लोगों के पास होगा भी, और नहीं होगा तो भी जानते हैं, उसका एक अपना पोजीशन है, राइट। बाइक में उसका एक अपना पोजीशन है। पीपल लव हैविंग रॉयल एनफील्ड। कुछ लोगों को नहीं भी पसंद होगा, बट उसके बारे में बात होती है तो एक अलग ही ये है, क्रेज है बोल सकते हैं रॉयल एनफील्ड का। तो 20 साल पहले रॉयल एनफील्ड गाड़ी का जो दाम था 55,000 था, राइट। ये रॉयल एनफील्ड कंपनी जो कंपनी बनाती है उसका नाम है आइसर मोटर, ठीक है। तो दो भाई थे, राम एंड श्याम। राम रॉयल एनफील्ड बाइक खरीदता है, लेकिन श्याम वो बाइक नहीं खरीदता है, उतना ही दाम का 55,000 का शेयर्स खरीदता है। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि रॉयल एनफील्ड
जो कि 55,000 दाम था, आज के डेट में उसका दाम 1.5 से 3 लाख रुपया है। ठीक है। एंड रॉयल एनफील्ड गाड़ी का खासियत क्या है, ये पुराने गाड़ी भी का भी दाम बढ़ते जाता है, दूसरे बाइक का दाम रिड्यूस होता है, बट इनफील्ड गाड़ी का जो है दाम बढ़ते जाता है, राइट। आइसर मोटर का शेयर का दाम 2002 में सिर्फ 3 रुपया था, ओनली 3 रुपीज। कैन यू बिलीव आज के डेट में इसका इस शेयर का दाम क्या है? एनी गेसेस फ्रेंड्स? क्योंकि आप लोग नहीं जुड़े हैं, 1000 रुपीज सर, 1000 रुपीज। ओके, सो जो लोग शेयर मार्केट से नहीं जुड़े हैं उनको नहीं पता है, बट यू कैन ऑलवेज गेस। ओके, रामाकृष्णन जी इज सेइंग 1000 रुपीज। जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन, टुडे इट इज 3000 प्लस, 3030 रुपीज। ये कुछ दिन पहले का रेट है, अभी शायद 3075-80 कुछ चल रहा है। सो फ्रेंड्स, व्हाट डज इट मीन? लेट्स अंडरस्टैंड। 55,000 में उस टाइम पे 3 रुपया का रेट से उनको 18,333 शेयर, 18,333 शेयर्स उनको मिले होंगे। और आज के डेट में उसका वैल्यू क्या हो रहा है? 5,55,48,990 रुपीज। What does that mean? It means 1,000 plus times return in 20 years. What does that mean? It means, first of all, we need to understand is 1,000 plus times in 20 years of time frame. This is simply not possible. In fact, none of the product in a in market has this power. None of the product market में और कोई ऐसा प्रोडक्ट है नहीं जो इतना ज्यादा रिटर्न्स देने का कैपेसिटी रखता है। So friends, that's the power of equity, and that's why one should think of investing. I'm saying investing, not trading. Okay, so investing in a stock market. So 55,000 का investment over a period of 20 years, 5,55,48,990, and it means आज के डेट में अगर वो पैसा पूरा निकाल भी लेता है तो एवरी ईयर एक टॉप मॉडल बुलेट खरीद सकते हैं, रॉयल एनफील्ड खरीद सकते हैं। इसके अलावा 25 लाख हर साल, इतने पैसे को अगर एफडी कर देंगे तो कुछ 27-28 लाख रुपया 5% के हिसाब से मिलेंगे, तो एवरी ईयर नया बुलेट आ सकता है और 25 लाख रुपया स्पेयर करने के लिए मिल सकता है। फ्रेंड्स, आई वांट टू आस्क ऑल ऑफ यू, गुड डील और बैड डील? फैंटास्टिक सर। एंड बाय द वे, वो 55 करोड़ आपके ही रहने वाले हैं, वो घटने वाले नहीं है। शेयर का दाम बढ़ेगा तो और ज्यादा बढ़ेगा, सॉरी हम तो विड्रॉ कर रहे हैं, बट 55 करोड़ तो आपके अकाउंट में ही रहने वाले हैं। और एवरी ईयर 27 to 28 लाख रुपए मिलेंगे, जहां पे एवरी ईयर एक नया बुलेट आ सकता है और 25 से 27 लाख रुपए एक्सपायर करने के लिए मिल सकता है, जस्ट बाय इन्वेस्टिंग 55,000 20 years back. सर बुलेट क्या मर्सिडीज भी आ सकती है? Yes, right. So that's the power. So friends, let's understand further. मैं यहाँ पे आप लोगों को दिखाना चाहूंगा कि ये जो आइसर मोटर का शेयर्स का दाम 3 रुपया से लेकर 3030 तक हुआ, ईयर ऑन ईयर क्या ग्रोथ हुआ। ये एकदम झटके में नहीं हुआ, 20 साल लगे हैं, बट देखिए कैसे हुआ। 3 रुपया से 9 रुपया हुआ, 27 हुआ, 2 साल उधर ही रहा, फिर 6-7 में घटा, 6 में घटा, 7-8 में फिर बढ़ गया, 9 में बहुत ज्यादा गिर गया था। 2008 में मार्केट गिरा था, आप लोगों को याद होगा, तो 24 आ गया था, देन अगेन बढ़ा, और उसके बाद तो बढ़ता ही रहा, कभी फिर गिरा नहीं। गिरा भी है तो गिरा लाइक 2018 में 18-19 में फिर से डाउन आया था, देन फिर बढ़ा लाइक दैट। सो दिस इज द जर्नी ऑफ आइसर मोटर, quite inspiring, right? And this is the power of equity, and this kind of returns you can get only in equity.
सर मुझे एक मिनट एनी अदर प्रोडक्ट। नहीं नहीं, अभी अभी रुक जाइए, अभी कुछ मत बोलिए, मेरे कंप्लीट करने दीजिए उसके बाद, क्योंकि फिर अटक जाएंगे। सो मैं यहाँ पे आप लोगों से पूछना चाहूंगा, एक नॉर्मल इंसान का, चाहे वो जॉब करता है या बिजनेस करता है, उसका डेली रूटीन्स क्या होता है? सुबह उठता है, ब्रश करता है, शायद कोलगेट का टूथपेस्ट से या फिर रेड डाबर का रेड टूथपेस्ट से। उसके बाद क्या करते हैं? अब मैं आप लोग अपने लाइफ स्टाइल को देखें, शायद आप चाय पीते हैं या फिर कॉफी पीते हैं, साथ में बिस्किट लेते होंगे, ठीक है। आपके घर में बच्चे हैं, मैगी खाते होंगे। सो ब्रिटानिया, मैरिको, नेस्ले के प्रोडक्ट यूज करते हैं। चाय कॉफी, टाटा टी, टाटा कॉफी, या फिर कोई और प्रोडक्ट ले लीजिए, जस्ट मैं रिलेट करने के लिए बोल रहा हूँ। सो ब्रश किया, चाय पिया, कॉफी पिया, है ना, बिस्किट लिया, नाश्ता किया, यू यू यूज दिस कंपनीज प्रोडक्ट्स। इसके बाद क्या होता है? आप ऑफिस के लिए तैयार होते हैं, तो शायद टाइटन्स का घड़ी पहनते हैं। आई एम जस्ट को रिलेटिंग, आप कोई और घड़ी भी पहन सकते हैं। रेमंड के लोग कपड़े पहनते हैं, फिर बाटा के शूज पहनते हैं, ऑफिस के लिए तैयार होते हैं, ऑफिस के लिए निकलते हैं। कुछ लोग बाइक से जाते हैं, कुछ लोग कार से जाते हैं। बाइक से जाते हैं तो बजाज का बाइक यूज करते हैं, टीवीएस का या फिर हीरो का बाइक यूज करते हैं। बाय द वे, ये सारी चीजें मैं क्यों बता रहा हूँ? दो चीजें होती है, एक होता है मैन्युफैक्चरर, दूसरा होता है कंज्यूमर। कंज्यूमर मतलब हम आप जो प्रोडक्ट कंज्यूम करते हैं, और मैन्युफैक्चरर जो प्रोडक्ट को बनाता है। अभी कंज्यूमर्स की संख्या बढ़ रही है, एंड दैट्स द रीजन। अगर आप बाइक में देखें, कोई भी प्रोडक्ट का मैं नाम ले रहा हूं यहाँ पे, इसको यूज करने के लिए लोगों की बढ़ रही है। इसका मतलब क्या हुआ? मैन्युफैक्चरर जो मेन कंपनी है, उसका सेल बढ़ रहा है, मतलब उसका बिजनेस बढ़ रहा है, मतलब वो उनका प्रॉफिट बढ़ रहा है। और प्रॉफिट बढ़ रहा है तो उसका सीधा इम्पैक्ट कहाँ है? ये वही वाली बात हो गई। आप कोलगेट यूज कर रहे हैं, कोलगेट के शेयर के दाम बढ़ रहे हैं। डाबर के टूथपेस्ट यूज कर रहे हैं, डाबर का दाम बढ़ रहा है। टाटा टी, टाटा कॉफी आप यूज कर रहे हैं, आप पी रहे हैं, उनके शेयर के दाम बढ़ रहे हैं। ब्रिटानिया और मैरिको के बिस्किट आप खा रहे हैं, हम आप सभी खा रहे हैं, उसके शेयर के दाम बढ़ रहे हैं। मैगी घर में लोग खा रहे हैं, मैगी नेस्ले कंपनी के शेयर्स के दाम बढ़ रहे हैं। सेम विथ टाइटन, रेमंड्स एंड बाटा, बजाज, टीवीएस, हीरो। एवरीडे आप जाइए, अभी 15 अगस्त आएगा, ऑफर आएगा, दिवाली एंड फेस्टिव सीजन अभी चालू होगा, मतलब लोगों को लाइन लगा के बाइक लेना पड़ता है। अगर आप फोर व्हीलर्स में जाते हैं तो शायद मारुति का फोर व्हीलर यूज कर रहे हैं, महिंद्रा का या फिर टाटा मोटर का फोर व्हीलर यूज कर रहे हैं। इनकी सेल बढ़ रही है, इनकी प्रॉफिट बढ़ रहे हैं। इट मीन्स व्हाट? इनको प्रॉफिट हो रहा है तो उसका इम्पैक्ट कहाँ है? इनके शेयर के दामों में। अगर आप गाड़ी चला रहे हैं तो तेल भी भरते ही होंगे, पानी से तो चलने वाला है नहीं, तो तेल की खपत बढ़ेगी। तो तेल बेचने वाली कंपनी, पेट्रोल बेचने वाली कंपनी कौन है? एचपी है, भारत पेट्रोलियम है, तो इसके शेयर्स के दाम बढ़ेंगे। एंड यही होता आ रहा है, यही होता आ रहा है। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। ऑफिस पहुंचते हैं या घर पे भी हैं, बिना एनर्जी के तो ऑफिस चलेगा नहीं, एनर्जी चाहिए ही। तो एनर्जी बेचने वाली कंपनियां कौन है? टाटा पावर है, अदानी पावर है, एंड अदर पावर कंपनी। आप अपने अपने एरिया में देख लीजिए, वो कंपनी का शेयर्स लिस्टेड है, मैंने तो बस कुछ नाम रखे हैं इधर में। तो एनर्जी कंपनी के, पावर कंपनी के शेयर्स के रेट बढ़ेंगे। तो हम आप प्रोडक्ट कंज्यूम कर रहे हैं, और उसका इम्पैक्ट क्या हो रहा है? उस प्रोडक्ट को यूज करने वाले कंपनी को फायदा हो रहा है, उसका शेयर्स का दाम बढ़ रहा है। ऑफिस है, अभी गर्मी का दिन है, गर्मी क्या इंडिया में तो अभी समझ लो एवरीडे एसी चलता है ऑफिसेस में, राइट। ठंडा क्या गर्मी क्या, शायद 1-2 महीना कहीं नहीं चलता होगा। सो एसी यूज होता है। एसी बनाने वाली कंपनियां वोल्टाज है, ब्लू स्टार्स है, इनकी सेल्स बढ़ती है, इनको प्रॉफिट होता है, तो इनके शेयर्स के दाम बढ़ते हैं। दिन में आप बैंकिंग करते हैं, टेक एनी बैंक जहां पे आपका खाता है, तो ऐसे ही लाखों करोड़ों लोगों का खाता है बैंक के साथ, तो बैंक का बिजनेस बढ़ रहा है। आप बैंकिंग करते हो, बिजनेस बैंकों का बढ़ रहा है, तो उसका इम्पैक्ट उसके शेयर्स के दामों पे है, उनके शेयर्स के दाम बढ़ रहे हैं। आप एक्स अमाउंट में आप
10 साल पहले लिए होंगे, आज उसका रेट x प्लस 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 हो गया। हमने एक एग्जांपल देखा आइसर मोटर का, राइट। वेल, घर में है, लोग हैं, तो लोग मेडिसिन कंज्यूम करते हैं, मेडिसिन कंज्यूम करते हैं तो मेडिसिन कंपनी का सेल्स बढ़ता है, उनको प्रॉफिट हो रहा है। तो कंपनी लाइक डॉक्टर रेड्डी, अजंता फार्मा, सिप्ला, आप इनके शेयर्स का दाम देखिए किस तरीके से बढ़ रहे हैं। और किनके चलते बढ़ रहे हैं? हमारे चलते। हम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इन कंपनियों का ग्रोथ में डे टू डे बेसिस पे। कोरोना ने सिखाया ऑनलाइन शॉपिंग, उससे पहले भी था लेकिन कम था। तो डीमार्ट कंपनी चाहे ऑनलाइन करें या ऑफलाइन करें, आपको घर में तो ग्रोसरी चाहिए ही चाहिए। तो आप सामान मंगाते हो, उनके सेल्स बढ़ रहे हैं तो डीमार्ट के शेयर्स का दाम बढ़ रहा है। डीमार्ट का शेयर का दाम को पिछले 5 साल का जर्नी उठा के देख लीजिए किस तरीके से उसका शेयर्स का दाम बढ़ा है। घर में बैठे हैं, इंटरटेनमेंट तो चाहिए ही चाहिए। शायद आप सन टीवी देखते हैं, जी टीवी देखते हैं, है ना, या फिर वीकेंड्स में मूवी देखने जाते हैं आइनॉक्स में, पीवीआर में, उनका बिजनेस होता है। आप घर में बैठ के टाइम स्पेंड कर रहे हैं, टाइम किल कर रहे हैं, जो भी है, आपकी इंटरटेनमेंट हो रही है। बट फायदा किसको हो रहा है? इंटरटेनमेंट कंपनीज को, उनके शेयर के दाम बढ़ रहे हैं। ट्रैवल करते हैं सर, या तो फ्लाइट से, ट्रेन से, तो ट्रेन आईआरसीटीसी के थ्रू से टिकट बुक करते हैं, उनका बिजनेस होता है। देन अदर उनके प्रोडक्ट को यूज करते हैं, उनको फायदा होता है, आईआरसीटीसी का शेयर का दाम बढ़ता है। इंडिगो, स्पाइस जेट जैसे फ्लाइट्स में अगर आप जाते हैं तो आप उनका टिकट लेते हैं, उनका बिजनेस होता है तो उनके शेयर्स के दाम बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर सुबह से शाम तक अगर आप देखोगे, जस्ट आप देखो क्या क्या आपका रेगुलर रूटीन्स है, एंड उस दौरान आप कौन सी कंपनी के प्रोडक्ट्स को यूज कर रहे हैं। थ्रू आउट द डे आप कुछ ना कुछ प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं, या फिर कोई सर्विसेज को कंज्यूम प्रोडक्ट को कंज्यूम कर रहे हैं, या फिर कोई सर्विसेज को ले रहे हैं। एंड बाय द वे, ये सारी कंपनी जिनकी मैंने नाम लिया, ये सारे रिनाउंड कंपनी, और इनके प्रोडक्ट्स को आप क्यों यूज करते हैं? बिकॉज आपको इनके प्रोडक्ट पे भरोसा है, इस कंपनी पे भरोसा है। 10 साल, 20 साल, 25 साल, 40 साल से आप इनके प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं। ब्रांड एस्टेब्लिशमेंट हो चुका है, उनका प्रोडक्ट में दम है, ठीक है। तो आपको इनके प्रोडक्ट्स पे भरोसा है, एंड इसके लिए कंटिन्यूअसली आप इनके साथ ऑनेस्ट हैं और इनके साथ जुड़े हुए हैं, इनके प्रोडक्ट को कंज्यूम कर रहे हैं, और इसका इम्पैक्ट क्या हो रहा है आप देख सकते हैं। सो मैंने कुछ ही एग्जांपल लिए हैं, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स। 2002 में डाबर का दाम 8 रुपया था, टुडे इट इज 551। ब्रिटानिया जस्ट 51 रुपीज, टुडे इट इज 3779। मैरिको 4 रुपया, अभी 508 रुपया। हीरो मोटर 268 ओनली, नाउ 2820। मारुति 235, नाउ इट इज 8719, बीच में 10,000 के ऊपर भी गया था। बाटा 15 रुपया, अभी 1815 रुपया। टाइटन 2 रुपया था 2231 नाउ। हिंदुस्तान लीवर के प्रोडक्ट सभी यूज करते हैं, 186 रुपीज था, 2553, एंड सो ऑन। एसबीआई 22 रुपया था, 489। बाय द वे, ये सिर्फ मैंने रेट लिए हैं, इन्होंने बीच में कई बार बोनस दिए, कई बार डिविडेंड दिए, वो आपको अलग से अगर उसको आप जोड़ेंगे तो वैल्यूएशन वाइज आपका प्रॉफिट जो है कहीं ज्यादा होगा। सो in terms of growth, if you can see the number of times it has given the return is 68 times, 127 times, 1115 times, and so on. आप मुझे बताइए, दुनिया में ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है जो इस लेवल का रिटर्न दे सकता है या दिया है? लोग गोल्ड की बात करते हैं, रियल एस्टेट की बात करते हैं, होता है, रियल एस्टेट में होता है, बट उसके अपने चैलेंजेस है। फिलहाल मैं उसकी बात नहीं करूंगा, मैं फोकस इक्विटी में ही आज रखूंगा। बट इस लेवल का रिटर्न आपको मिल ही नहीं सकता। राइट और राइट फ्रेंड? Yes, sir. Yes, sir. Absolutely right, sir. राइट।
फैंटास्टिक। Absolutely. या सो यहाँ पे जस्ट टू इलोबरेट, आपके पास आपका बैंक अकाउंट है, आप बैंक अकाउंट में पैसा रखते हैं। फॉर एग्जांपल एसबीआई, एसबीआई में आपका अकाउंट है, आप एसबीआई के अकाउंट में आपका पैसा है और एसबीआई के ऊपर आपका भरोसा है क्योंकि इतने सालों से आपका अकाउंट है। आप उसके अकाउंट में बैंक का एफडी करते हैं और बैंक आपको कितना रिटर्न देता है? 5%। और बैंक बिजनेस क्या करता है? बैंकिंग। एंड किसी को पैसा चाहिए, लोन चाहिए तो लोन देता है। फॉर एग्जाम्पल आपको ही लोन चाहिए, पर्सनल लोन, वो आपको कितना चार्ज करेगा मालूम है? 10% एंड मोर, 10.5, 11, 12 लाइक दैट। प्राइवेट प्लेयर तो ऐसे ही और ज्यादा चार्ज करते हैं, 15%, 18% लाइक दैट। मैं यहाँ आपको पूछना चाहूंगा, आप बैंक में एफडी क्यों करते हैं? क्योंकि आपको बैंक पे भरोसा है। तो अगर आपको बैंक पे भरोसा है और बैंक आपका ही पैसा को यूज करके इतना जबरदस्त अर्न कर रहा है और ईयर ऑन ईयर ग्रो कर रहा है, तो आप उस बैंक के शेयर क्यों नहीं खरीदते? क्योंकि कोई बोल दिया शेयर मार्केट जुआ है। नहीं, अभी उधर मत जाइए। लेट बी हियर। जस्ट एसबीआई का रेट देखिए, 22 रुपया था ओनली, 20 साल में 489, मतलब 22 टाइम्स। अगर आप एफडी करते तो कितना होता? 4 गुना, 5 गुना। बाय द वे, इसमें एक्चुअल वैल्यूएशन और ज्यादा होगा बिकॉज एसबीआई ने बीच में कई बार डिविडेंड और बोनसेस दिए। सो फ्रेंड्स, दिस इज व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड टू स्टार्ट विथ। एज ए बिगिनर आपको करना क्या है? पहले तो अकाउंट खोलना है और आप देखिए कि वो कौन से प्रोडक्ट है, वो कौन से कंपनियां हैं जिनको डे टू डे बेसिस पे आप यूज कर रहे हैं। एंड जब आप यूज कर रहे हैं, इसका मतलब इंडिया यूज कर रहा है। आम आदमी जिसको यूज कर रहा है, मतलब हम आम आदमी है ना भाई, ठीक है, तो उसको पूरा इंडिया यूज कर रहा है। और इंडिया यूज कर रहा है, इसका मतलब उस कंपनी का सेल्स बढ़ रहा है, ग्रोथ हो रहा है, प्रॉफिट पे प्रॉफिट बना रहा है। और शेयर्स लेने का मतलब क्या हुआ? शेयर्स मतलब यू आर ए पार्टनर, यू आर ए स्टेक होल्डर। वो कंपनी ग्रो करेगा 200% से, तो आपका इन्वेस्टमेंट भी 200% से ग्रो करेगा। सो दिस इज व्हाट द थिंग आई वांटेड यू टू अंडरस्टैंड फर्स्ट। तो ये कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ? इफ इट इज क्लियर प्लीज से जस्ट आउट क्लियर। यस सर, क्लियर क्लियर। Yeah, clear. As of now, clear. फैंटास्टिक। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, स्टॉक मार्केट इज ऑल अबाउट मनी, करेक्ट? मैं पूछना चाहूंगा, आप पैसे के साथ करते क्या, या क्या किया जा सकता है? द आंसर इज वेरी सिंपल। पैसे के साथ यही 3 चीज होता है, या तो आप उसको सेव करेंगे, स्पेंड करेंगे, या फिर इन्वेस्ट करेंगे। सेविंग मीन्स व्हाट? सेविंग मीन्स कीपिंग योर मनी in a safe place, and the safe place could be your locker, your wallet, your piggy bank, your bank account. Spending, you know everybody, because बचपन से हम सीख जाते हैं स्पेंड करना। अपनी जरूरत के चीजों के लिए पैसा डालना, जिसके बदले में हम कोई प्रोडक्ट या सर्विसेज को यूज करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड स्पेंडिंग। एंड इन्वेस्टिंग मीन्स व्हाट? सो इन्वेस्टिंग मीन्स यू आर पुटिंग योर मनी in a product or somewhere where there might be some kind of risk, but at the same time there is a scope of growth. So there is a difference in saving and investing. आप 1000 रुपया अपने लॉकर में रखते हैं, 1 साल के बाद जाते हैं, वो 1000 रुपया ही होगा। 1000 रुपया 1001 भी नहीं होगा, राइट? बट इन्वेस्ट अगर करेंगे, देयर इज ए स्कोप कि वो 1000 का 10 रुपीज बढ़ जाए, या फिर 100 रुपीज बढ़ जाए, कुछ भी हो सकता है, राइट? सो वॉरेन बफेट, द वर्ल्ड्स रिनाउंड वेल्थ ग्रुप, he says, do not save what is left after spending, but spend what is left after saving. लोग क्या करते हैं, 100 रुपया इनकम है तो सोचते हैं 90 रुपया खर्च करेंगे, जो बचेगा उसको सेव करेंगे। दैट्स द रॉन्ग वे। उस चक्कर में कुछ भी नहीं बचता है और
आप सेव ही नहीं कर पाते। यू शुड डू द अदर वे। आपकी 100 रुपया की इनकम है, आप सोचो कि 100 रुपया इनकम नहीं है, 90 रुपीज इनकम है, एंड 10 रुपया साइड कर दो। इफ यू डू सो, यू विल बी एबल टू सेव योर मनी एंड यू कैन इन्वेस्ट दैट, राइट? नाउ व्हाई टू इन्वेस्ट? द आंसर इज इन्फ्लेशन. Inflation eats up your saving over time. 100 रुपया आपने पिगी बैंक में डाला, एक साल के बाद 100 रुपया ही है, लेकिन इन्फ्लेशन 7% है, तो 100 रुपया का वैल्यू क्या हो जाता है नेक्स्ट ईयर मालूम है? 93 रुपीज. आज जो 100 रुपया में जितने प्रोडक्ट ले सकते हैं, नेक्स्ट ईयर आपके प्रोडक्ट कम हो जाएंगे. सिंपल सब्जी मार्केट से आप रिलेट कीजिए. शायद 100 रुपया में पहले बैग भर के आता था, 5 साल पहले बैग भर जाता था सब्जियां, आज आधा भी नहीं होता है. क्या सब्जियां चेंज हो गया? सब्जियों का साइज बड़ा हो गया? क्या हो गया? सब्जियां तो वही है, सब्जियों के दाम बढ़ गए. एंड व्हाई? बिकॉज ऑफ दिस इन्फ्लेशन. एंड द वर्स्ट थिंग अबाउट इन्फ्लेशन, ये हमें दिखाई नहीं देता है. सो दैट्स व्हाई आई कॉल इट इनविजिबल इविल. ये दिखाई नहीं देता है, बट ये अपना काम कर रहा है. एंड उसका इम्पैक्ट क्या है देखिए. फॉर एग्जाम्पल, आज के डेट में यू हैव 30,000 ऑफ योर रनिंग कॉस्ट. आपका खर्चा जो है, घर चलाने का खर्चा 30,000 रुपया है. 5 साल बाद सेम लाइफ स्टाइल को मेंटेन करने के लिए 40,000 रुपया लगेंगे. 15 साल बाद डबल हो जाएगा खर्चा, 60,000. एंड 20 साल बाद 80,000. एंड द इम्पैक्ट आई एम कैलकुलेटिंग एट द रेट ऑफ 5% ओनली. इन द अदर वे, 1 लाख का वैल्यू 5 साल बाद 80,000 रह जाएगा, एंड 15 साल बाद जस्ट हाफ हो जाएगा, 20 साल बाद ओनली 35,000. सो दिस इज द पावर ऑफ inflation trend. This is the impact of inflation, and that's the reason we all must invest, because the investing is the safeguard. It safeguards against inflation. So first of all, start with saving. Progress from saving to investing. Put money to work rather than accumulating or keeping it idle. Because आप पिगी बैंक में रखेंगे, लॉकर में रखेंगे, बैंक अकाउंट में रखेंगे, एक्चुअली उसका वैल्यू डिग्रो हो रहा है, ग्रो नहीं हो रहा. Now you are working hard to earn money. If you will invest, the time will come when your money will start working for you. That's why one should invest. And the biggest advantage of investing is the power of compounding. Albert Einstein says, power of compounding is the 8th wonder. मैं हमेशा अपने सेशन में एक स्टोरी लेके आता हूँ, बोलता हूँ राम और श्याम 2 भाई होते हैं. वो लोग अच्छा काम करते हैं, जिसके वजह से राजा उनको बुलाते हैं अपने दरबार में रिवार्ड करने के लिए, और उनको 2 ऑप्शन देते हैं. द पहला ऑप्शन, टू गिव 1 CR every day for next 30 days. And the second option, to give 1 rupee very first day, which will be doubled every day. So it's like पहला दिन 1, दूसरा दिन 2, तीसरा दिन 4, 8, 16, 32 and so on for next 30 days. Ram opted for the first option, 30 CR. 1-1 करोड़ करके 30 दिन में 30 करोड़ होता है. And by the way, 30 CR, it's a big amount. But Syam opted for the second option, 1 रुपया वाला option. Here I want to ask all of you, who took the wise decision, Ram or Syam? जिसको ज्यादा the second one. ज्यादा. जिसको ज्यादा मिलेगा, Every day double. Yes, every day double. क्या लगता है 30 दिन के बाद कितना डबल हुआ रहेगा? 40 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़, कितना हुआ रहेगा? Sir, I know the answer, but I will not tell. Okay, fine, fine. आप मत बोलिए, बाकी लोगों को बोलने दीजिए. Unimaginable, sir, actually. Okay, got it. चलिए देखते हैं. So here is the answer, friends. 1 रुपया से स्टार्ट हुआ जर्नी, 1, 2, 4, 8, 30, 32, 64 करते हुए 15 दिन में it's 16,000 only. 20th day 5,24,000. Then miracle start होता है, मैजिक स्टार्ट होता है, एंड ऑन 30th day it's 53,68,000. एंड उसका इम्पैक्ट क्या है? अगर आप सम करेंगे पूरे को, तो it's
107 CR 37,41,823. So this is the answer, and that's the power of compounding, and that's what happened in investing. आप एक शेयर खरीदते हैं, वो शेयर आने वाले दिनों में डिविडेंड देता है, फिर कभी बोनस देता है, तो आपके नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाते हैं, और ईयर ऑन ईयर जो ग्रोथ हो रहा है उसके वजह से शेयर का दाम बढ़ते जाता है। और जब बोनस और डिविडेंड देते हैं, इट्स लाइक आपके पास एक मुर्गी है, मुर्गी अंडा दिया, अंडे से फिर बच्चे निकले, वो बड़े हुए, देन वो फिर अंडा देने लगे, देन उससे बच्चे निकले। सो दैट्स हाउ इट वर्क्स इन इन्वेस्टिंग इन स्टॉक मार्केट, इन्वेस्टिंग इन शेयर एंड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। जैसे कि यहाँ पे पावर ऑफ कंपाउंडिंग देख रहे हैं, स्टार्टिंग में नहीं समझ में आएगा, बहुत ज्यादा रिटर्न्स नहीं दिखेगा, कभी डाउन आ जाएगा, ठीक है, तो आपको लगेगा कि अरे ये गड़बड़ तो नहीं हो गया। Stock investing in stock market, investing in equity is not about a short term game, it's always a long term game. अगर आपके पास प्रेजेंस है तो आप यहाँ पे मैसिव वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं, and you can start with a small amount. The importance is accumulation, I mean, and consistency and patience, right? सो लगातार आप इन्वेस्ट करते रहेंगे और पेशेंस बनाए रखेंगे, थोड़ा मोड़ा ऊपर नीचे होगा, उससे आप डरेंगे नहीं, तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आप मैसिव वेल्थ क्रिएट करेंगे। वॉरेन बफेट फर्दर सेज, नेवर डिपेंड ऑन सिंगल इनकम, मेक इन्वेस्टमेंट टू क्रिएट अ सेकंड सोर्स। हाउ मेनी ऑफ यू हैव a single source of income only? If you are the one, इन्वेस्टमेंट को सेकंड सोर्स ऑफ इनकम बनाइए, अभी इन्वेस्ट कीजिए, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इट विल स्टार्ट गिविंग यू so much of returns that will become a second source of income for you. So especially the people who are working, they always have complained, अरे मेरे पास तो टाइम ही नहीं है, मैं किधर करूँ, कब करूंगा दूसरा काम या दूसरा सोर्स ऑफ इनकम के लिए मैं कहाँ हाथ पांव चला ही नहीं सकता। तो नहीं कर सकते हैं, एग्रीड, इन्वेस्टमेंट तो कर सकते हैं, राइट। नाउ फ्रेंड्स, ये तो चलिए क्लैरिटी मिल गई कि स्टॉक मार्केट में अगर इन्वेस्ट करते हैं तो हमें इस लेवल का रिटर्न्स मिल सकता है, बट कौन सा स्टॉक को चूज करें, कौन सा शेयर सही है, अभी जो हो गया क्या उसी शेयर को लेना है, इतना शेयर का दाम बढ़ चुका है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये बात समझने की जरूरत है, टेक एनी नेम, टेक एनी इंडस्ट्री, एंड उसके टॉप के 4-5 कंपनी निकल के आ जाएंगे। मैं इंडस्ट्री का नाम ले रहा हूं, आप लोग अनम्यूट कीजिए, कुछ कंपनी के नाम बताइए। आईटी इंडस्ट्री, आप जिसको जानते हैं, जस्ट आउट आउट फ्यू नेम। Infosys, Cognizant, TCS. फैंटास्टिक, फैंटास्टिक। बैंकिंग, HDFC, SBI. राइट। एफएमसीजी, Hindustan Lever. राइट राइट। ऑटो, ऑटो सेक्टर, Bajaj, TVS. करेक्ट, Tata, Maruti, Tata Motors. Tata. यस यस, सो ट्रू, सो ट्रू। सो बोलने का मतलब है टेक एनी इंडस्ट्री, मैंने 3-4 नाम लिए और फटाफट आपके मुंह से कुछ नाम निकले, ठीक है। सो ये सारी कंपनियां वर्षों से चली आ रही है, कंसिस्टेंट है, उनका मैनेजमेंट बहुत सही है, उनका प्रोडक्ट में बहुत जबरदस्त दम है, और उसका इंपैक्ट क्या है, वो ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट बना रहे। तो दिमाग ज्यादा नहीं लगाने का है, ऐसे ही शेयर, ऐसे ही कंपनी को शेयर्स में के शेयर्स को बाई कर लेने का है। कंपनी को आप नहीं चला रहे। देखिए, व्हेनेवर इट इज इन्वेस्टिंग इनटू इक्विटी, इट्स नॉट अबाउट बाइंग द शेयर, इट्स ऑल अबाउट बाइंग द बिजनेस। आप जब शेयर्स खरीद रहे हैं, आप कंपनी के शेयर्स नहीं खरीद रहे हैं, उस कंपनी का बिजनेस को खरीद रहे हैं। इन अदर वे आप बोल सकते हैं, यू आर नॉट पुटिंग इनटू द शेयर, बट यू आर पुटिंग इनटू द बिजनेस, एंड वो बिजनेस ग्रो कर रहा है। वो बिजनेस आप नहीं चला रहे, उस बिजनेस को चलाने के लिए मास्टरमाइंड है। लाइक रिलायंस को चलाने के लिए अंबानी जी हैं, मुकेश अंबानी, एंड ही नोज वेरी वेल हाउ टू रन द बिजनेस। टाटा कंपनी को चलाने के लिए टाटा ग्रुप है,
entire management hai, they knows how to take the business to the next level and the company is growing. उनका प्रॉफिट अगर आप देखिएगा तो करोड़ों में होता है, 100 करोड़ 1000 करोड़ का प्रॉफिट होता है, लैक्स ऑफ करोड़ का सेल्स होता है, टर्नओवर होता है, एंड वो ग्रो ही हो रहा एंड द बिगेस्ट थिंग लेट मी टेल यू, वी आर इन इंडिया, द पॉपुलेशन जिसको हम लोग नेगेटिवली लेते हैं वही बिजनेस के लिए पॉजिटिव भी है। कंजम्पशन ज्यादा होगा ना, पॉपुलेशन होगा तो कंजम्पशन होगा, हम आप ही कंज्यूम कर रहे हैं और कंज्यूम कर रहे हैं तो उस कंपनी का बिजनेस बढ़ रहा है। सो हाउ टू सिलेक्ट ए स्टॉक? फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट चेक द इंडस्ट्री, सी द इंडस्ट्री, the industry what you are targeting, the industry is growing industry और उस पे saturation आ गया। अगर इंडस्ट्री ग्रोइंग है तो फिर डरने वाली कोई बात नहीं है, वहां पे स्कोप है, वहां पे और ज्यादा बिजनेस होएगा। अगर सैचुरेशन आ गया तो ऐसा इंडस्ट्री में जाने का दरकार नहीं। ठीक है, सो अभी जो हमने बात करा ये 2-4 इंडस्ट्रीज की, इसके अलावा मैं अपने इंडस्ट्री की बात करता हूँ, फिनेंशियल इंडस्ट्री, ब्रोकिंग इंडस्ट्री या फिर इंश्योरेंस इंडस्ट्री। आप देखिएगा इंश्योरेंस इंडस्ट्री पिछले कुछ सालों में बहुत जबरदस्त तरीके से बढ़ा है। LIC 50 साल तक अकेले राज किया, पिछले 20 सालों से प्राइवेट प्लेयर आए और उसका नतीजा क्या हुआ? करीब करीब 15% लोग जो है अभी इंश्योर्ड हुए हैं और अभी भी 85% लोग जो है अनइंश्योर्ड है। कोरोना की वजह से अवेयरनेस और बढ़ी है, लोग और ज्यादा इंश्योरेंस बाई कर रहे हैं, तो इंश्योरेंस बाई करेंगे तो इंश्योरेंस कंपनी का बिजनेस होगा, इंश्योरेंस कंपनी का बिजनेस होगा तो इंश्योरेंस कंपनी का शेयर बढ़ेंगे। लोगों के बैंकिंग भी नहीं होते हैं गांव में, लेकिन अब हो रहे हैं क्योंकि गांव गांव में बैंक पहुंच रहा है और लोग पैसा भी रख रहे हैं, पैसा ट्रांजैक्शन हो रहा है, बिजनेस हो रहा है, तो फिर बैंकिंग बिजनेस बढ़ेगा। मैं छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है। सो एनी इंडस्ट्री जो ग्रोइंग है इट्स अ गुड इंडस्ट्री। ठीक है, तो टू सेलेक्ट, टू आइडेंटिफाई ए स्टॉक, फर्स्ट वी नीड टू चेक द इंडस्ट्री, सेकंड इज कंपनी। इंडस्ट्री इज ग्रोइंग, द कंपनी एसोसिएटेड और attached with a particular industry, we need to check that कंपनी कैसा है, कंपनी का पास्ट रिकॉर्ड कैसा है, ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है, इज इट ए प्रॉफिट मेकिंग कंपनी और ए लॉस मेकिंग कंपनी। ठीक है, सो वी कैन ट्रैक पिछला 3 साल का रिकॉर्ड, 5 साल का, 11 साल का। इफ द ट्रैक रिकॉर्ड इज कंसिस्टेंट, इफ इट इज ए ग्रोइंग कंपनी, देन अगेन उसमें टिक मार्क कर देने का। ठीक है, कंपनी इज ग्रोइंग एंड फर्दर इसका पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड बहुत सही है तो इस पे करने का, आगे और अच्छा ही होने वाला है ऐसा कंपनी। बट इफ इट इज अ लॉस मेकिंग कंपनी, उसको उस पे नहीं जाने का, भले इंडस्ट्री अच्छा हो लेकिन कोई कंपनी उसका हालत ठीक नहीं है, गड़बड़ है, तो उस पर दिमाग नहीं लगाने। थर्ड इज पीपल, कंपनी इज रन बाय पीपल एंड पीपल मीन्स हियर इट इज मैनेजमेंट। इंडस्ट्री अच्छा है, कंपनी अच्छा है, लेकिन मैनेजमेंट गड़बड़ है, मैनेजमेंट में कुछ चेंजेस हुआ, नए लोग आए और ये मैनेजमेंट सही तरीके से रन नहीं कर रहे हैं, ये लोग कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, रेड मार्क है पास्ट में, तो ऐसे कंपनी से बचने का। राइट, सो ये ध्यान देने वाली बात है, पर्टिकुलर कंपनी के प्रति कितने कंप्लेंट्स हैं। ठीक है, और लोग जो हैं इनके खिलाफ कुछ मार्केट में 10 तरह की बातें होती हैं, मैनेजमेंट इज नॉट क्लीन। नॉट ओनली दैट, इन ए पर्टिकुलर बिजनेस, इन ए कंपनी, मैनेजमेंट ने कितना स्टॉक ले रखा है, प्रोमोटर्स ने कितना स्टेक ले रखा है। इफ इट इज लेस देन इट्स ए गड़बड़, इफ इट इज 65+%, दैट मीन्स मैनेजमेंट ने मेजर स्टेप लेके रखा हुआ है और उनको अपने बिजनेस से प्यार है। रामकृष्ण जी, गेटिंग मी? Yeah. सो दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि कंपनी मैनेजमेंट का कितना स्टेक है। अगर 65+% ज्यादा है देन इट्स ए गुड थिंग, दे विल ऑलवेज लव to increase the business, they will always think about
their stakeholder, they will always think about the business to grow. बट अगर स्टेक कम है, बिलो 50%, आप मान के चलिए मैनेजमेंट के दिमाग में कुछ खिचड़ी पक रही है, वो कभी भी पूरा बिजनेस को बेच के निकल सकते। ये भी देखने का है कि कंपनी डेट फ्री है क्या या फिर लोन में डूबी हुई है। थोड़ा मोड़ा लोन चलता है, लेकिन बहुत ज्यादा लोन है तो फिर मामला गड़बड़ है, राइट। नेक्स्ट, प्रोडक्ट। सो इंडस्ट्री अच्छा है, कंपनी अच्छा है, लोग मैनेजमेंट भी अच्छे हैं, उनका प्रोडक्ट कैसा है? प्रोडक्ट में दम है, उसका सीधा आप देखेंगे उसका सेल्स पे। अगर प्रोडक्ट में दम है तो उसका डिमांड बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगा, सेल्स बढ़ेगा, सेल्स बढ़ेगा, कंपनी का प्रॉफिट भी बढ़ेगा। तो प्रोडक्ट कैसा? प्रोडक्ट का रिव्यू देखिए, लोग क्या बोल रहे हैं प्रोडक्ट के बारे में, जो भी प्रोडक्ट है उसका। तो ऑटो प्रोडक्ट है तो ऑटो के बाइक्स हैं, अभी डिफरेंट टाइप्स के बाइक्स होते हैं, आप उनका रिव्यू देखिएगा, कितने बायर्स हुए हैं, उनकी कितनी सेल्स बढ़ी। ऑटोमेटिकली जो यूजर हैं वो क्या फीडबैक दे रहे हैं, तो बोलेगा नहीं नहीं हीरो का स्प्लेंडर तो मस्त है, लेकिन हीरो का जो शायद स्प्लेंडर प्लस प्लस उतना मजा नहीं है, या कोई और चीज है, लाइक दैट। कोई नया लॉन्च किया और लॉन्च करते साथ हिट हो गया, कंपनी लॉन्च किया और हिट हो गया, तो ऑटोमेटिकली उसका क्रेज मिलेगा और उस कंपनी में ग्रोथ दिखेगा। एंड लास्टली प्राइस। आप चेक करें एक कंपनी का डिविडेंड ट्रैकिंग रिकॉर्ड क्या है, डिविडेंड देने का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है। इफ कंपनी इज ग्रोइंग, द इंडस्ट्री इज ओके, कंपनी इज ओके, लोग, प्रोडक्ट, एवरीथिंग इज ऑल ओके, बट एंड ऑफ द डे whether company is thinking about the stakeholder or not, क्या मैनेजमेंट सिर्फ अपने बारे में सोचता है या फिर अपने स्टेक होल्डर के बारे में भी सोचता है? अगर वो उनका ट्रैक रिकॉर्ड डिविडेंड देने का कंसिस्टेंट है, रेगुलर है और अच्छा है, इट मीन्स ये सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचता, ये सेल्फिश नहीं है मैनेजमेंट, ये कंपनी सेल्फिश नहीं है, ये अपने स्टेक होल्डर के बारे में भी सोचता है। देन जो लोगों के बारे में सोचता है तो लोग ही उसको उठा देंगे ना। लेकिन जो कंपनी लोगों के बारे में नहीं सोचता है, अपने स्टेक होल्डर के बारे में नहीं सोचता है, अगेन ऐसे कंपनी को अवॉइड करने का, क्योंकि आगे फिर लोगों का इंटरेस्ट उसमें से कम होगा। सो फ्रेंड्स, ये 5 पैरामीटर्स है, इस 5 पैरामीटर्स में आप फिल्टर करिए अपने स्टॉक्स को, और हर पैरामीटर में अगर ओके पाते हैं, जस्ट गो फॉर इट। The investment in that company will create you massive wealth. So that's the power of equity, friends, and that's for the day. I hope I added some value to all of you. Now I am open for question and